अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैम हेलो। हेलो। Okay, today's topic is inverse standard normal cumulative distribution function. The inverse standard normal cumulative distribution function determines a value of z corresponding to a given value of a cumulative probability. Suppose the cumulative probability at z is equal to small z is p. Then we have phi of z is equal to probability z less than small z is equal to p. We know that phi of z capital phi of z. Whenever we see in the table which is given on page 292 or 293, something like this, the probability is given from minus infinity to plus infinity, total probability, and at the specific point z. For example, the graph is the chart of the normal distribution is, for example, like this. This is a straight line, and this is a curve. In the center, there is 0. The scale of this line is z. It is z scale. And in the center, it is 0. As you can see, that this z, which is in phi, this is small z. So small z locates on the number line from any point. All these points on the number line are z, small z. These points are small z. Okay, all these points are small z. For example, this one which is enclosed within parenthesis. जो parenthesis में small z लिखा हुआ है वही इस number line के ऊपर exist कर रहा है, कहीं भी exist कर सकता है, left to the 0 or right to the 0, anywhere on the number line. And whenever you want to find the probability on these points, the table gives you the value between minus infinity to that point. For example, your z is here. Then the probability is minus infinity to z. The shaded area is this one, and this is your small z. And this area is called as phi of z. This is capital phi. Capital phi, this one, of z. This is small z. Area between minus infinity, here is minus infinity. Area between minus infinity to z is phi of z. So this phi of z can be written as is equal to probability capital Z, which one is this one? This is capital Z.
and this is small z. So z less than small z. You can write here z less than small z is equal to any specified value. For example, in our definition, it's small p. Let it's small p. So now come to the book. In your book, you can see this line. Phi of z is equal to probability z less than z is equal to p. Now, if you take the this phi on the right hand side, z will retain the same side. अगर हम phi को right side पे ले जाएं, तो left पे क्या रह जाएगा? Left पे आपका small z रह जाएगा. This is small z. देखो यही रह गया. उस तरफ क्या जाएगा? phi inverse. यही वाला जो phi है आपका, तो इस तरफ ये जो पड़ा हुआ है phi, यही वाला phi उस तरफ चला जाएगा. तो उस तरफ जाएगा, तो obviously इसकी पावर होगी और इसकी पावर यहाँ पर इसकी पावर है +1. जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1. ठीक है. और इसके साथ अब इस तरफ क्या पड़ा हुआ है? इस तरफ p पड़ा हुआ है. z उस तरफ रह गया और p इसके साथ यहाँ पे लगा स्मॉल p. इसका मतलब है कि p प्रोबेबिलिटी अगर गिवन है तो हम फाई इनवर्स का टेबल यूज करके, जिस तरह फाई का टेबल गिवन है इस तरह फाई इनवर्स का भी, फाई इनवर्स का टेबल यूज करके, वो टेक्निक यूज करके हम z फाइंड कर सकते हैं. यानी इनिशियली हमने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अब तक हमने पार्ट्स किए हैं कि z गिवन होता था और हम फाई ऑफ z फाइंड करते थे, यानी एरिया फाइंड करते थे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे 293 और 294 पेजेस को यूज करके, 292 से 294. यानी z, if z is given, you can find the area using the table given in page 293 to 294, that is called phi of z. Now reverse, the case is now reverse. If phi of z is given, you can find the value of z. ठीक है. पहले था z गिवन था तो phi of z फाइंड कर सकते थे. अब phi of z गिवन है तो अब z फाइंड कर सकते हो. अब phi of z जब गिवन होगा तो वो ये सेंटर में जो शेडेड एरिया है which is also equal to probability, इसको हम probability भी कह सकते हैं. ठीक है. ये जो आपका गिवन एरिया है ये आपकी probability भी है. यानी मैं इस शेडेड एरिया को अगर कहूँ तो ये शेडेड एरिया आपका स्मॉल p है. हम इसको स्मॉल p से डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमने भी यहाँ पर लिया है स्मॉल p. ठीक है. ये स्मॉल p आपकी ये शेडेड एरिया पे, ये वाला स्मॉल p जो है वही है जो आपने यहाँ पर इक्वेशन में ये वाला लिखा है स्मॉल p. और ये phi of z इज इक्वल टू स्मॉल p, ये हमने इसमें लेट कर लिया कि ये हमारी फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ये क्या हो सकती है. p की वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आप टेल पे है. अब सेंटर में कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? अगर हम यहाँ से लेकर स्टार्ट से लेकर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना चाहें यहाँ तक सेंटर तक, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तो बता सकते हैं मुझे जी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तहरीम 983 रोल नंबर आप बता सकती हैं? ये होगी पॉइंट, यहाँ तक की जो प्रोबेबिलिटी है ये वाली ब्लू वाली, ये प्रोबेबिलिटी होगी 0.5. 0.5. अगर ये 0.5 है तो ये जो टेल पे प्रोबेबिलिटी है ये 0.5 से तो लेस ही होगी. फॉर एग्जांपल वो 0.1 है. 0.1. Let's see, p is now 0.1. By using the inverse use of the table,
in taking the probability small p is equal to 0.1, we can find out the value of the z, which is at the specific point at the end of this shaded area. So come to the table, and table is 2989, then 2989, and then 290, then 91 to 92, this one. You have to locate your probability small p in between the table. You have to see this is our point 1. Locate this point 1 here in this table. Starting is 0. Obviously, in the start of the figure at minus infinity, there is no shaded area. So probability is 0. स्टार्ट में माइनस इंफिनिटी पे कोई एरिया शेड नहीं हो रहा, तो देखिए कि प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, उस पर 0 होगी। और पॉइंट आपके पास माइनस इंफिनिटी का पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर वो माइनस इंफिनिटी का पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन -4.5 यहाँ तक आपका टेबल है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि आपका जो मिनिमम पॉइंट है वो -4.5 है। अच्छा, अब उससे आगे थोड़ा चले जाएं तो फिर ये प्रोबेबिलिटीज चलती जा रही है आगे के। हमने देखना है कि हमारा ये जो सेट है, ये इस पे प्रोबेबिलिटी हमने लेट की है 0.1, सपोज 0.1 है। इस पूरे टेबल के सेंटर में अगर आप सर्च करें तो ये सारी वैल्यूज अभी बड़ी छोटी छोटी हैं, एंड में भी देखें 0.05 है। हम अगले पेज पे जाते हैं, 293। अब 293 में हमने ये इस टेबल का इनवर्स यूज कर रहे हैं जो अब तक हमने टेबल यूज किया था। अभी देखिए इस टेबल के सेंटर में जो वैल्यूज है आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, कहीं 0.1 है, ये देखिए 0.5 है, मिल गया 0.5। अच्छा 0.9 है ये नीचे करके, फिर और नीचे 0.9 और लास्ट वैल्यू है 0.976। थोड़ा सा और नजदीक जाते हैं तो हम अगले पेज पे चले जाते हैं, 294। हम 294 पेज पे जाएंगे। ओहो, हमने 0.1 पे जाना था तो हम 0.9 पे चलेंगे। पीछे वाले टेबल पे देखिए 0.1, 293 पेज पे, दिस इज 0.08, 0.07, this one 0.09 and 0.095, 0.093, and this is 0.98. This is 0.1. Yes, this is the point. I am now drawing a line here in which value is closest to r 0.1. This is probability equal to almost equal to 0.1. This is 0.01, 10027. So at this point the value of z is read by here. From the horizontal line, it's -1.2, and from the vertical line, you can read it 8. So your value at this point would be -1.2. I'm using and next is 2.8 -1.28. So at this point, where probability is equal to
0.1, the value of z is, because this is z, you can see this is z. You can read your z from the horizontal and vertical line. This is your vertical line, this is your horizontal line. From vertical line, it's point minus 1.2, and from horizontal line, it's point 0.08. So we can write the z is this z, which is here. This z is equal to minus, it should be minus because it's beyond to 0 on the left hand side of the 0. So it's minus 1.28. Okay, uh, this one. If your probability is given, the shaded area is given, you can find your probability by the inverse use of the tables which we have done in the previous topic. The tables are same, but you are using the inverse use of table. By looking your value in center of the table and pick up the values, corresponding values from the horizontal and vertical line of the Z. Okay, now come to the next point in our book. This one. So this is probably in inverse, phi of inverse P is equal to Z. Example is this one. We have using the example of 0.1, which is equal to minus 1.28. These are two other examples. Use of the standard normal table. This is our next topic. We have done this example. First, second, and three part, I think, yes. And fourth is find the value of z when the ordinate is, okay, this is now today's topic. Look, we have searched in the table 0.1. Now they are saying that look, the value of probability 0.12. So come to the table, the same table, and find the value of, but here you have to find the ordinate, not find the value of z, but the ordinate at z is equal to this one. There are three things. Come to the software again, and now I am taking one more figure. First, clear all lines and draw a figure here, comparatively a big figure. Here is a straight line. In the center, there is 0. Here, a point. For example, this point is small z, as we have done. This is small z. This is your shaded area. Shaded area is 4. Okay, this shaded area is your phi of z. This is your capital phi of z. This is the shaded area. Can anyone tell me that what is
the value of the point which exists here. This is the point. I'm making it a bigger one. Can anyone tell me what is the value of this? What is this point called? Actually called this point. As I can anyone tell me? कोई बता सकता है कि ये पॉइंट जो है ये कौन सा पॉइंट है? Probability. आज कोई बच्चा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सारे पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर है। मैंने उनको एक नाम बताया था। सारे पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर हैं। इवन के जो मैक्सिमम पॉइंट है इसको भी एक नाम है। सारे ये एक सारे को कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं ऑर्डिनेट। दीज आर योर ऑर्डिनेट्स। ये सब ऑर्डिनेट। फिर ये भी ऑर्डिनेट हुआ। इसका मतलब है कि आपको अगर z गिवन है तो फाई ऑफ z फाइंड कर सकते हैं। फाई ऑफ z गिवन है, अगर ये फाई ऑफ z गिवन है तो आप z फाइंड कर सकते हो, ये फाइंड कर सकते हो। और इसी तरह से आप ये वाला जो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ये ऑर्डिनेट है, ठीक है, आप इस ऑर्डिनेट को भी फाइंड कर सकते हो। ठीक, आपको जो आपके बुक में जो पेज है उसमें यही बता रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है आपका फोर्थ वन। इस फोर्थ वन पार्ट में जो चीज डिटरमिन करनी है वो यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन द ऑर्डिनेट एट z इज इक्वल टू 0.12। यानी कि आपको इस पॉइंट की वैल्यू जो है वो दी हुई है। यानी ये जो पॉइंट है आपको कितना दिया हुआ है? 0.12001। ठीक है, 0 अगेन 0 एंड 1। ये वाला जो पॉइंट है ये दिया हुआ है। अगर ये पॉइंट आपको ये दिया हुआ है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो अपनी स्पेसिफाइड वैल्यू? ये बात तो आपको पता है कि यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है यहाँ पर भी कोई पॉइंट ऑर्डिनेट का होगा, और इस पे आपकी z की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर आपका z होना चाहिए, क्या होना चाहिए z? जी बताइए, बताइए जल्दी से। z की वैल्यू यहाँ पर होगी 0। ठीक है, जब भी हम अपने इस डेंसिटी फंक्शन में इस z की जगह पर, ये जो z यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करें, जैसे कि ये वाला है, तो हमें जो ऑर्डिनेट मिलता है, हमने पहले भी किया था ये काम, वो मिलता है 0.3989। ठीक है ना। इसी तरह से आप ये ऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट पे फाइंड करना है। यहाँ पर ऑर्डिनेट कितना है, ये रिवर्स है, आपको ऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपने z फाइंड करना है। यहाँ पर है कि z गिवन है, दिस इज गिवन। अगर मैं यहाँ लिखूं कि ये इस पार्ट में है, ये गिवन है, z इज गिवन। यहाँ मैं लिखती हूँ then you can find the value of ordinate, maximum ordinate at this point. अब आपको ऑर्डिनेट दिया हुआ है और z फाइंड करना है। पहले आपको ये गिवन था और ये फाइंड करना था। अब आपको ये गिवन है और ये फाइंड करना है, इसका रिवर्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे गिवन z 0 था और आपने ऑर्डिनेट फाइंड करना था। अब फोर्थ पार्ट में आपको ऑर्डिनेट फाइंड गिवन है और z फाइंड करना है। तो देखिए जरा इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास किस तरह से आएगा। वो हमने इनवर्स यूज कर लेना है उसका टेबल का, और उससे हमने इसको फाइंड कर लेना है। अच्छा, आपके पास जो टेबल्स दिए हुए हैं वो टेबल्स में अगर आप नोट करें कि शुरू के 3 पेजेस तो हमने यूज ही नहीं किए। शुरू के 3 पेजेस है ना, 292 से 294 तक हमने यूज किए हैं। अब आपने टेबल जो 7 टेबल है उसका इनवर्स यूज करना है और उसको ऑर्डिनेट को फाइंड कर लेना है। देखिए फाई ऑफ z इज इक्वल टू 0.12001, और इस पॉइंट से आपने जब फाइंड किया इसको फाई को, तो वह वैल्यू जो है वो
1.55 नेगेटिव में भी आएगी और पॉजिटिव में। क्यों ये नेगेटिव और पॉजिटिव में दो वैल्यूज आ रही हैं? इसलिए आ रही हैं कि आपकी जो हाइट है, जो हाइट इस पॉइंट पे है वही हाइट आपकी इस पॉइंट पर है। दोनों ऑर्डिनेट्स यदि पॉइंट 122 इस तरफ भी वही होगा और इस तरफ भी वही, क्योंकि हाइट दोनों तरफ सेम है, तो ये वैल्यू भी आपकी वही है। जो आपकी ये वैल्यू 0.12001 इस पॉइंट पे भी वही है, और आपका जो ये राइट साइड पे मैं शो कर रही हूँ स्पॉटलाइट से, और जो लेफ्ट साइड पे, दोनों की हाइट सेम है और दोनों की वैल्यू 0.12001 है। तो इस पॉइंट पे आपका जो z होगा वो नेगेटिव में होगा, और इस रेड लाइन के एंड पे जो z का पॉइंट होगा वो पॉजिटिव में होगा। इसलिए आपको ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव में दो वैल्यूज दी हुई है। तो इफ ऑर्डिनेट इज गिवन, then you can find your z in both positive and negative। ठीक है जी। अब आपने यूं करना है कि इस टेबल को देखिए, पेज नंबर टेबल नंबर 7, दोबारा से हम इसमें आ जाते हैं। टेबल नंबर 7, ये टेबल नंबर 9 है। शुरू के जो पेजेस मैंने आपसे कहा कि 290 से ये वाले, देखिए आपका टाइटल क्या लिखा हुआ है इस पेज का, पेज नंबर टेबल नंबर 7 का, ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व z इज इक्वल टू स्मॉल z। अब आपने अपना स्मॉल z इसके सेंटर में सर्च करना है, जो कि कितना है 0.12001। ये देखिए आपके सामने फिगर पे भी नजर आ रहा है। ठीक है, इस पेज पे तो नहीं है। टेबल नंबर 7 की कंटिन्यूशन में अगले पेज पे जाते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है आपके पास 0.12 जरा देखिए, और कोई मुझे बता सकता है, कोई लाइन ड्रॉ करे जरा अपने उससे मेरी स्क्रीन के ऊपर, कर सकते हैं? एनोटेशंस मैंने ऑफ नहीं की हुई, आप जरा लाइन ड्रॉ करें और मुझे बताएं कि कौन सा पॉइंट है जहां पर हमारा ये वाला पॉइंट है 0.12001 इस टेबल के सेंटर में। करें, और 0.12 चाहिए। नहीं, गलत है। 0.12 10 आ गया, बिल्कुल ठीक। और बड़ी खूबसूरत लाइनें आप लोग लगा रहे हैं, है ना? सब गलत हैं। 0.12, हाँ जी, ये जो ब्लू लाइन जिसने लगाई है ना, वो निस्बतन ठीक है, 0.11 पे है। ठीक है, तो मैं जरा मिटा रही हूँ। बिल्कुल सही, ये देखें रेड लाइन कितनी अच्छी किसी बच्ची ने लगाई है, वेरी गुड। अब अगर इस पे देखिए तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से पढ़ें तो क्या वैल्यू आ रही है? देखिए ये वाली वैल्यू जो है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, वो है -1.5। ठीक है ना? और आप यहाँ से पढ़ें तो ये एक और 5, तो क्या हो गया -1.55। ठीक है, चलें, हमने नोट कर लिया। अब हम जाते हैं अगले पेज पे, इससे अगले वाले पेज पे मैं जाने लगी हूँ। ये देखिए, अब ये जरा मैं लाइंस भी मिटा दूं, आपने जो लगाई हुई हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या यहाँ पे भी 0.12 यही वाला 0.12001 एग्जिस्ट करता है इस पेज पे? क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर भी होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए, नेगेटिव साइड पे भी और बिल्कुल सही है। ग्रे लाइन जो है ना, थोड़ी ऊपर लगा दी उस किसी ने, ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है ये लाइन? बिल्कुल सही, ये है। ठीक है ना, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। बिल्कुल, देखिए आपको ना इन्होंने कन्वीनियंस दे दी है कि ये पॉइंट बाकी टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखिए एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को रीड करें तो क्या आता है? मैम 0.5 इधर से, और ये 5 मिल गया तो 1.55, ये पॉजिटिव वाला आ गया। चले जी, हम बुक पे वापस आते मैम हैं, और बुक में हम देखते हैं कि ये जो बस आप बस ड्राइंग खत्म करें बच्चों। लो लो लो, इतनी खूबसूरत ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी जरा वैनिश करनी जल्दी से। ये देखिए 5z, हम लिखेंगे कैसे 5z, क्योंकि ऑर्डिनेट गिवन है स्मॉल 5z। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात मैं एक और बस में लिखने लगी हूँ इसी फिगर में, जो मेरी फिगर है। आप लोग जरा अपनी ड्राइंग्स मिटाए ना, ताकि मैं अपना जरा सही तरह लिखूँ। ये जो मैंने जितने डॉट्स इस कर्व के ऊपर लगाए हैं, ये सारे डॉट्स, ये स्मॉल 5z है, स्मॉल 5 ऑफसेट। अब आपको इस टेबल इस फिगर में 3 बातें मैंने बताई। एक बात बताइए कि ये पॉइंट्स जो इस कर्व के ऊपर है, तो इसका मतलब है ये भी क्या हुआ आपके पास?
स्मॉल 5z। ठीक है जी। तो तीन बातें हैं, z, स्मॉल 5z एंड कैपिटल 5z। ठीक है, ये आपको मैंने बता दी है। तो ये आपके पास जो वैल्यू है ये है इज इक्वल टू स्मॉल 5z। स्मॉल 5 को हम ना इस तरह भी लिख सकते हैं एक ही गो में, या इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह मर्जी। ये लाइन को हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं, और अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। लेकिन कैपिटल 5 के लिए ऊपर नीचे छोटी छोटी लाइनें निकालनी, जिस तरह आई लिखते हैं ना कैपिटल आई, उसके लिए ये वैल्यू जो है वो स्मॉल 5z। ठीक है, तो ये इन्होंने इस तरह से लिखा, स्मॉल 5z इज इक्वल टू दिस वन एंड z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.55। और आप लोगों ने देख लिया कि प्लस माइनस 1.55 वैल्यू आई है। ये हमने इनवर्स टेबल का दो दफा यूज किया है, एक दफा पॉजिटिव साइड पे और एक दफा नेगेटिव साइड पे। ठीक है जी, अगली एग्जांपल देखते हैं 10.2। इफ z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, जरा ये सारी ड्रॉइंग्स मिटा दूं। ठहरे पहले हम सॉफ्टवेयर में भी आते हैं वापस। अच्छा, यहाँ से हम ड्राइंग्स को पूरा मैनेज किया। ठीक, तो ये हमने जो वैल्यू निकाली थी इस केस में, अगर हमारा p जो है ये कितना था 0.1 था, इसका आंसर हमारे पास आया था -1.28। ठीक है ना, इसका मैंने आपको सोल्यूशन बताया था। अब हम देखते हैं अगली एग्जाम्पल, और अगली एग्जाम्पल में क्या है, इफ z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस देन फाइंड z दिस वन दिस। ये हमने कर लिया बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस याद है ना, प्रोबेबिलिटीज ये सब हमने कर ली है, हमने एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन कर लिए। ये सब आपका डन है। और 10.3 एग्जाम्पल जो है ये हम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको मॉडुलस नहीं कराया और मैंने आपको इंटरपोलेशन नहीं कराई है। ठीक है, तो हम इंटरपोलेशन का टॉपिक कल करेंगे। आज हम बगैर इंटरपोलेशन वाला जो क्वेश्चन है वो फोर्थ पार्ट है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ फोर्थ पार्ट करते हैं। -1.64 से 2.32 यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। हम सॉफ्टवेयर में वापस आते हैं और हमने प्रोबेबिलिटी -1.64 हमने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी -1.64 टू z कैपिटल Z लेस देन 2.32। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ कि यही बुक में था। बिल्कुल जी, नहीं, इसमें और भी है, और मैंने गलत लिख दिया, इसमें ग्रेटर देन है उधर और इसका लेस देन है। ठीक है, और भी है सेंटर में। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना यहाँ पर, और z ग्रेटर देन। ठीक है जी, अब ठीक हो गया। अब आप जरा इसकी फिगर देखें कि कितने इसकी मजे की फिगर बनेगी, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस फिगर में कौन सा एरिया शेड होगा। जल्दी से जरा सोच ले, जब तक ड्रॉ करती हूँ और मैं पॉइंट्स को लोकेट करती हूँ कि ये पॉइंट्स जो है ये कहाँ कहाँ पर होंगे, और आपने इसमें इन पॉइंट्स को जो बनाया, एक पॉइंट है आपका सेंटर में, ऑब्वियसली क्या है, 0 है, z का स्केल है ना। ये देखिए ये z लिखा हुआ है, जब भी z लिखा होगा तो हमने यहाँ पर 0 बना दिया। चलिए फाइन, 0 हो गया। 2.32 पॉजिटिव साइड पे आएगा, ये तो डन हो गया ना क्योंकि पॉजिटिव है। और दूसरा -1.64 है, ऑब्वियसली नेगेटिव साइड पे आएगा। चलो ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया। अब आपने मुझे बताना है, कोई बच्चा भी माइक खोल के मुझे बता दे कि कौन सा वाला एरिया शेड होगा। जल्दी से जरा बता दी। ये है -1.6। जल्दी जल्दी बता दें, जल्दी बच्चों बताओ। नो वन इज लेस का मतलब क्या होता है, अगली वाला पॉइंट है 2.32।
तो देखें बच्चों, ये है लेस का साइन। लेस का साइन होगा तो इस पॉइंट से लेस का एरिया शेड होगा, इस पॉइंट ये वाला बन जाएगा। हमें इस एरिया को शेड कर देना है, ठीक है जी। कौन सा एरिया शेड होगा आपका? F1, ठीक है जी। ये वाला एरिया यहाँ से हमने ऐसे शेड कर देना है, ये वाला एरिया शेड होगा। नहीं बच्चों, मैंने शेड करना है, आपने नहीं करना, ठीक है ना। चलो ठीक, ये वाला एरिया शेड हो गया। अब मुझे बताएं कि साइन जो है नेक्स्ट कौन सा है? ग्रेटर का साइन है, सही है ना, ये वाला z ग्रेटर देन 2.32। इसका मतलब 2.32 से ऊपर का एरिया है। ग्रेटर का मतलब है कि हमने उस तरफ जाना है, तो फिर हमने जो एरिया शेड किया वो 2.32 से ऊपर का एरिया, ये वाला एरिया शेड करना है जो मैं अब कर रही हूँ, ठीक है। चलें जी, इसका मतलब है ये वो वाली फिगर है जिसमें दोनों एरियाज जो हैं वो एक्सट्रीम पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो एरिया मैंने पहले शेड किया, ठीक है। चलिए जी, तो मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं, चलिए, थैंक यू सो मच। अपनी लाइन में डालें अब आप, ठीक है। मेरी लाइन भी नहीं लग रही, चलिए 12 का प्लीज हमने कर लिया। ओके, अब हम इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे? इसके सोल्यूशन में हमने जो काम करना है वो ये है, यहाँ पर इज इक्वल टू, अब देखिए कि हमें दो और है ना, तो इसका मतलब है कि दोनों काम करते हैं। हम इनको पहले स्प्लिट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी पहले वाला स्प्लिट किया, z लेस देन -1.64, ठीक है, 1.64 ये हो गया। और इसमें प्लस क्या हुआ? दूसरा एरिया कौन सा इसमें प्लस होगा? चलिए यहाँ ले जाती हूँ, हाँ जी, प्लस इसमें होगा प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2.32। हमने बात पढ़ी थी कि जब अभी लेस का टेबल देखेंगे तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज फाई ऑफ कैपिटल फाई ऑफ z। इसको जरा जल्दी से टेबल में देख के बताएं। -1.6 पे कल भी हमने देखी थी ये वैल्यू, ये एग्जैक्टली -1.64 पे वैल्यू क्या है जी। टेबल पे आते हैं वापस। टेबल मेरा ये पड़ा हुआ है और हमने 292 पे जाना है और यहाँ देखना है टेबल पे वैल्यू -1 पॉइंट। अब आपने देखो इस टेबल को यूज किया है, एरिया एरिया फाइंड करना है। देखिए ऊपर टेबल के ना ये कैपिटल फाई ऑफ z लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी z लेस देन स्मॉल z। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जरूर ध्यान रखना है कि आप सही टेबल देखते हो। ये देखिए ये टेबल लिखा हुआ है, हमारी प्रोबेबिलिटी कौन सी है? इस स्मॉल z की जगह पर हमने लिखा है -1.64। अब आपने -1.64 को इसमें सर्च करना है, तो -1.64 -5 से थोड़ा सा ऊपर ये देखिए -1.6 आ गया और 4 कहाँ तक है? ये लाइन यहाँ तक है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कौन सा बन रहा है आपका? ये वाला। क्लियर हो गया? ये पॉइंट है आपका 0.0505, ठीक है। यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी आपकी इतनी बन रही है। तो हम वापस आते हैं अपने सॉफ्टवेयर में और इसको लिखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो आया है इतना। और यहाँ पर लिखने के बाद आपने उसको 0.0505, अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का आपको पता है, जब भी ग्रेटर का साइन हो तो हमने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करनी होती है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी? ये लेस के साइन के साथ आएगी। हम लिखेंगे z लेस देन 2.32। अब आपने 2.32 को भी जरा उस टेबल में दोबारा से देख लेना है। हम दोबारा उस टेबल पे जाते हैं और हम उस टेबल पे, यहाँ पर नेगेटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, और ये 294 पेज पे देखिए 2.3 ये रहा और 2 ये रहा, तो कितनी वैल्यू है?